people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. As rightly noted by the former US Secretary of Defense James Mattis died, nations with allies thrive, and without them, they wither. In the contemporary Milo, globalization, increasingly regional interconnectedness and integration of economies are some of the tendencies that have inhibited nation-states from adopting an inward-looking posture or insularity, practicing isolationism, and resorting to absolute self-reliance or autarky. Resultantly, in order to avert from becoming legal nullity, modern societies vie for diversifying their relations and tie economic bonds so as to materialize collective prosperity, address growing demands of their populace, and consolidate their statehood. Needless to say, CPEC is such a tangible realization on the part of member states to connect their economic fates together and endeavor jointly in a concerted manner to attain coveted ends. Started functioning almost a decade earlier, CPEC has entered into the second rung of its progress ladder, in that the project prioritizes agriculture sector development, reindustrialization, employment generation, technology transfer, and building human skills in order to actually ensure trickle-down effect. Besides, the project envisages to help Pakistan win new allies. But as the saying goes on, no ventures are without dangers. CPEC too is confronting a host of daunting challenges in the form of Pakistan's domestic political disorder, fiscal volatilities, institutional red tape, and external stiff opposition to the expeditious completion of BRI's signature project. Having the preceding scenario under consideration, our today's sitting covers such areas as what is the raison d'etre of the second phase of CPEC, how the second phase envisages to galvanize industrialization and germinate employment opportunities. Also, we will discuss and cover challenges being confronted by the second phase of CPEC. Finally, we will provide certain policy measures as to how these roadblocks should be addressed and tackled in a manner so as to ensure expeditious completion of CPEC. Global economic uncertainty and volatility, increasing inter and intra-state inequality, एंड जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है उसमें इंक्रीज की वजह से चाइना ने 2013 में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल और डेवलपमेंटल मॉडल और एक इकोनॉमिक फिलॉसफी चाइना ने इंट्रोड्यूस कराई, या इसको ऐसे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चरल मॉडल चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया 2013 में शी जिनपिंग की लीडरशिप में, जिसको हम आज ब्री के नाम से जानते हैं. ब्री में अगर बात करें तो इस मेगा प्रोजेक्ट में 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, जिनमें CPEC जो है ना उसके बारे में कहा जाता है कि इट्स द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ ब्री और इट्स द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ ब्री. ठीक, अच्छा, CPEC की अगर हम, चूंकि आज हमारा टॉपिक रिलेटेड टू CPEC सेकंड फेज है, तो हम इसको इस तक लिमिटेड अपने आप को रखेंगे ताकि कम टाइम में जो रिक्वायर्ड हमारे पास टॉपिक है वो कवर हो सके. CPEC में बेसिकली 3 फेजेस हैं, जिसमें हम पहले फेज को कहते हैं शॉर्ट टर्म फेज, जो कि 2015 से 2020 तक चला, और उसमें हमने पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसमें रोड्स हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए. सेकंड जो फेज इस टाइम अंडर वे है वो स्टार्ट होता है 2021 से एंड कंटिन्यू रहेगा टिल 2025. अभी सेकंड फेज को हम कहते हैं इस मीडियम टर्म फेज दैट एम्स टू एड्रेस पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन क्राइसिस एंड जर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान. और जो थर्ड फेज होगा CPEC का वो 2026 से 2030 तक जो है ना वो चलेगा, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म. और इस फेज में हम जो भी इस टाइम अब तक जो हमारे पास जो काम जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो मैच्योर होंगे, वो अपनी कंप्लीशन पॉइंट पे पहुंचेंगे. आज हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है उसका टाइटल आप लोगों को नजर आ रहा है कि CPEC सेकंड फेज गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि CPEC का जो सेकंड फेज है वो कैसे पाकिस्तान की इस टाइम जो नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट इंडस्ट्री है या जो डिसफंक्शनल इंडस्ट्री है उसको कैसे रिवेम्प और रीइन्विगोरेट करेगा CPEC का सेकंड फेज. एक बात ये करेंगे. दूसरी बात हम ये देखेंगे ये CPEC का जो सेकंड फेज है वो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे जनरेट करेगा. ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात इन व्यू रखनी है कि जो ये 2 टर्म्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब इंटरलिंक्ड, इसको ऐसे हम कहेंगे दीज 2 टर्म्स आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद ईच अदर. यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो उसके रिजल्ट में जॉब क्रिएशन. ठीक, तो आज यहाँ पे हम इसको ऐसे शुरू करते हैं. पहले
इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ यहाँ पे जो है ना वो स्टेटमेंट्स नोट किए हैं ताकि हमें आइडिया हो कि क्या इंपॉर्टेंस है सेकंड फेज की, और इस इंपॉर्टेंस को इन व्यू रख के आज के इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है सेनेटर मुशाहिद हुसैन है, उनका कहना है कि CPEC इज एन इकोनॉमिक मिरेकल डिसेंडेड ऑन पाकिस्तान इन टाइम्स व्हेन द कंट्री वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक आइसोलेशन। अब ये तो इंपॉर्टेंस है नजर आती है CPEC की, क्या इंपॉर्टेंस है फॉर पाकिस्तान। आगे अगर उस स्टेटमेंट की तरफ चले जाएं जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया इसको डिवीजन प्लान से, जिसमें कहा गया कि फ्रॉम 2015 टू 2038 CPEC इज सेट टू क्रिएट 2.3 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अब इन दोनों बातों से हमें यह समझ आ रहा है कि CPEC पाकिस्तान के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को रिवाइव कराना है, जिसने पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट रेट जो इस टाइम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है उसको कंसोलिडेट करना है या उसमें नए एवेन्यूज क्रिएट करना है। और ये दो डेवलपमेंट्स हैं, ये कंबाइन होकर पाकिस्तान के जो अवाम है उनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक, आगे अगर हम सेक्शन 2 और सेगमेंट 2 की तरफ चले जाएं इस डिस्कशन, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं जिन पे टाइम ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को CPEC के बेसिक्स के बारे में आप लोगों को आइडिया है, इवन देन कुछ फर्दर यहाँ पे मैंने कर्सरी पॉइंट्स मेंशन किए हैं ताकि जो नए व्यूवर्स हैं या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आइडिया थोड़ा डेवलप हो। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट लिखा है अंडर द हेडिंग ऑफ बेसिक ऑफ CPEC, सेकंड हेडिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। यहाँ पहला पॉइंट लिखा है कि फ्रंट लाइन प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिज, जैसे हमने पहले बात की कि CPEC को हम कहते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर प्रोजेक्ट है एंड सो ऑन। आगे अगर चलें तो यहाँ पे लिखा है कि CPEC प्रोवाइड्स एन इम्पेटस टू पाकिस्तान विजन 25। अब इस पूरी डिस्कशन में जहाँ कहीं भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे पाकिस्तान विजन 2025, तो इसका मतलब आप लोगों ने यही समझना है कि ये एक ऐसा वाइट पेपर है या एक पॉलिसी प्रोग्राम पाकिस्तान ने बनाया है जिसके अंदर पाकिस्तान की कोशिश ये है या जो गवर्नमेंट है या जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी कोशिश है कि बाय द एंड ऑफ 2025 पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन है वो नॉलेज ड्रिवन हो। ठीक, यानी हमने नॉलेज के थ्रू अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। 2025 का जो विजन है पाकिस्तान का वो इज ऑल अबाउट नॉलेज इकोनॉमी, इज ऑल अबाउट डिजिटल इकोनॉमी ऐसे समझ लें, या नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा है CPEC इज कल्टिवेटिंग कंट्री वाइड इंटरकनेक्टिविटी ब्रिजिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, CPEC एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एड्रेस करेगा पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं या डेफिसिट है उस डेफिसिट को एड्रेस CPEC ने करना है, जिसमें हमने शुरू में बात की अपने फेज 1 में। CPEC ने अपने फेज 1 में पाकिस्तान में जो एनर्जी शॉर्टेजेस और क्राइसिस थे उनको, और इंटर सिटी और इंटर रीजन जो कनेक्टिविटीज में जो इश्यूज थे उनको काफ़ी हद तक CPEC के फर्स्ट फेज ने एड्रेस कर लिया है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, CPEC इज टर्निंग पाकिस्तान इनटू अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक हब। अब यही बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जैसे एक बात को या एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कनेक्ट हमने कैसे करना है। अब काफ़ी सारे लोग जो है ना वो चैनल पर कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी की जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में हम पढ़ें, तो अब हमें CPEC से ये पता चलता है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान के लिए नेसेसिटेट किया कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो आउटलुक है उसको चेंज करे फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। इन सिंपल वर्ड्स, पाकिस्तान जो है ना अब एक ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है, या ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज एन एसेट देन अ लायबिलिटी। अब इस पर्पस को मटीरियलाइज करने के लिए पाकिस्तान जो है ना वो जो रीजनल नेशंस हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशंस, अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को पाकिस्तान प्रायोरिटाइज कर रहा है एंड सो ऑन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या है असल में जियो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पाकिस्तान की फॉरेन जो नई पॉलिसी है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने ये याद रखना है कि पाकिस्तान ने CPEC के थ्रू ये रियलाइज किया है कि द कंट्री नीड्स टू एक्सप्लॉइट इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ये हमारे पास कुछ कर्सरी या हमारे पास एक रफ मतलब एक शॉर्ट और एक कंसाइज सा इंट्रोडक्शन था CPEC से रिलेटेड। अब हम अपने मेन जो टॉपिक आज का है उसकी तरफ चले जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि CPEC के जो फेज 2 है या उसको हम जो कहते हैं कि ये मीडियम टर्म जो हमारे पास फेज है वो कैसे पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को बॉस्टर करेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा, और इन दो के कंबाइनेशन की वजह से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे यहाँ पे मटीरियलाइज करेगा सेकेंड फेज ऑफ CPEC। तो यहां पे फिर से एक स्टेटमेंट हमने कोट किया है या मेंशन किया है एम्बेसडर टू चाइना। उनका कहना है कि द सेकंड फेज ऑफ CPEC a new beginning for Pakistan's industry, agriculture sector and socio-economic well-being। तो इस बात से हमें यह समझ आ जाती है कि
CPEC का जो सेकंड फेज है वो इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल रिवाइवल या इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ना वो दोबारा से उसकी एफिकेसी को इम्प्रूव करना है सेकंड फेज ने। और थर्ड जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मसलन पावर्टी लेवल को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को कम करना एंड सो ऑन। तो ये तीन हमारे पास मेजर एरियाज हैं जो कि CPEC के सेकंड फेज ने प्रायोरिटाइज करना है या फोकस इन्हीं तीन एरियाज पे करना है। अब अगर आगे, चूंकि इस टॉपिक में हमने हेडिंग लगाई थी कि या हमने शुरू में कुछ क्वेश्चन हमने लिखे थे अपने इंट्रो और प्रीएम्बल में कि रेजन डेटर ऑफ CPEC, तो उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक ट्रांसफर। यानी हमारे पास ये जो एरियाज आप पढ़ रहे हैं ये वो एरियाज है जो कि CPEC के सेकंड फेज ने इंश्योर कराने हैं या उसने वर्क करने हैं टुवर्ड्स देयर अटेनमेंट या टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ दीज सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी आर येट टू स्टडी। सेकंड पॉइंट यहां पे हम अगर देख लें कि CPEC का जो सेकंड फेज है उसने और क्या क्या करना है, इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक्स का मतलब ये कि लाइवलीहुड्स को जो ना इंप्रूव करना है, या इनको हमेशा भी कहते हैं कि लोगों का जो वेलफेयर है उसको इंप्रूव करना है CPEC के सेकंड फेज ने। अब इंप्रूव कैसे होगा? इंप्रूव ऐसे होगा कि जब लोगों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, स्किल डेवलपमेंट उनमें होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इन कुछ एलिमेंट्स की कंबाइनेशन की वजह से जो हमारे पास ह्यूमन एजेंसी है पाकिस्तान में या पाकिस्तान की जो पॉपुलेस है उनमें वो स्किल्स डेवलप होंगे जिनकी बेस पे वो अपने लिए लाइवलीहुड रिसोर्सेज और लाइवलीहुड सोर्सेज को क्रिएट कर सकेंगे या हंट कर सकेंगे। अब जब उनके पास अर्निंग सोर्सेज अवेलेबल होंगे तो उससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सोशली अपवर्ड या सोशल मोबिलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे, अपवर्ड मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं सोशल अपवर्ड मोबिलिटी। अच्छा, अगर नेक्स्ट आगे चला जाए, इनिशिएशन ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स। एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली जो है ना वो जो एक कमेटी है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक कमेटी है CPEC की, उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि अब वो एनर्जी क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी मिक्स को जो है ना वो प्रायोरिटाइज करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ या टू रिमूव अदरवाइज फॉसिल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिन पर काम काफ़ी टाइम से फर्स्ट फेज में हो रहा था। तो अब पाकिस्तान एंड चाइना ने इस बात पर मतलब एग्री किया है कि अब जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे एनर्जी, कोशिश यही है कि वो रिन्यूएबल हों या फ्रेंडली इन नेचर हों टू इन्वायरमेंट। आगे चलते हैं, क्लाइमेट चेंज इंजीनियरिंग एक पॉइंट है जिस पे CPEC के इस फेज में काम होना है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग टूरिज्म। CPEC के सेकंड फेज में पाकिस्तान का जो टूरिज्म का जो सेक्टर है उसको एक इंस्टीट्यूशन और एक सेक्टर की मतलब उसको इंपॉर्टेंस देनी है इस सेकंड फेज ने, ठीक है। क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो टूरिज्म का सेक्टर है उसको अगर प्रॉपरली चैनलाइज एंड मोबिलाइज किया गया तो इसका पोटेंशियल इतना है कि ये हर साल या पर ईयर पाकिस्तान को इन रेवेन्यू ये कोई $40 बिलियन पाकिस्तान को रेवेन्यू में प्रोवाइड या जनरेट कर सकता है टूरिज्म का सेक्टर। तो इस बात को रियलाइज करके CPEC अथॉरिटी ने या जो ज्वाइंट कमीशन है CPEC के बारे के लिए पाकिस्तान चाइना जो ज्वाइंट कमेटी है CPEC, उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि क्यों ना हम टूरिज्म सेक्टर को एक टूरिज्म जो हमारे पास सेक्टर है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो, सही, ताकि उससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको डील किया जा सके, ठीक है। तो ये है सेकंड लास्ट पॉइंट, फार्म मार्केट कनेक्टिविटी। अब हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ से मार्केट तक जो हमारे पास कनेक्टिविटी या रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब CPEC के सेकंड फेज ने ये कोशिश करनी है कि फार्म्स को या एग्रारियन लैंड या फर्टाइल लैंड या वो जो हमारे पास जहाँ पे क्रॉप्स हैं उनसे लेके मार्केट तक वेल कनेक्टेड रोड्स को हमने कंस्ट्रक्ट करना है ताकि जो फार्मर्स हैं उनको परेशानी ना हो अपने उस प्रोड्यूस को मार्केट तक लाने में। ये काम करना है CPEC के सेकंड फेज ने। यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट किया है कि CPEC सेकंड फेज इज वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन विद पाकिस्तान विजन 2025। जैसे शुरू में हमने ऊपर बात की थी कि जो पाकिस्तान का विजन 2025 है वो इज ऑल अबाउट नॉलेज इकोनॉमी, यानी हमारी कोशिश यही है कि हमने अपनी इकोनॉमी को या अपनी एजुकेशन को इकोनॉमी ड्रिवन करना है या ऐसी एजुकेशन हमने अटेन करना है जिसको हम कहते हैं कि क्रिटिकल लर्निंग करना है ताकि वहाँ पे प्रोडक्टिव एंड मार्केट सेंट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ठीक। उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू हमने जो है ना वो जो इनोवेशन एंड इन्वेंशन जो प्रोसेस है उनको बोल्स्टर करना है। तो ये हमारे पास है CPEC का जो सेकंड फेज है उसका रेजन। अब आज के टॉपिक के थर्ड जो सेक्शन या सेगमेंट है उसकी तरफ चले जाते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हाउ विल फेज 2 ऑफ CPEC
गैल्वनाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ऊपर तो हमने जनरल बातें की कि इस फेज का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, या वो कौन से फोकस एरियाज है जिनके लिए या जिन पर काम होना है सीपेक के सेकंड फेज में। थर्ड सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट होगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी। इस सेक्शन में हमने ये पढ़ना है। तो जो सबसे पहला यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है कि सीपेक सेकंड फेज इज अटैचिंग स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी टू री इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम इस सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान में चलो एक जो है इमेच्योर नेचर की या हमारे पास डिसफंक्शनल नेचर की यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, सीपेक के सेकंड फेज ने उसको री इंडस्ट्रियलाइज करना है। ठीक, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है इंप्रूविंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बात हमें याद रखनी है कि जब तक पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। न इंडिजिनस कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा, न ही कोई बाहर से कोई यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है वो ये है कि यहाँ पे एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट को जनरेट करना है ताकि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हेजिटेशन का शिकार ना हो। एक ये काम हमने करना है। नेक्स्ट, स्किल्स डेवलपमेंट एंड लेबर मोबिलाइजेशन। जब तक यहाँ पे डोमेस्टिक जो हमारे पास ह्यूमन एजेंसी है या वर्क फोर्स है वो स्किल्ड नहीं होगी तब तक बाहर से कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी आके यहाँ पे अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या एक अपनी ब्रांच यहाँ पे ओपन नहीं करेगी, या ऐसे कह लें कि वो बाहर से यहाँ आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी क्योंकि उसको ये पता है या ये उनको मतलब हेजिटेशन है कि यहाँ की जो इंडिजिनस जो हमारे पास लेबर फोर्स है वो इंटायरली या ग्रॉसली अनस्किल्ड है। ठीक, अब अगर अनस्किल्ड है तो उनकी जो एक्सपर्टीज है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अब उनकी एक्सपर्टीज फिर भी अगर अवेल करते तो वो जो प्रोडक्ट को जर्मिनेट करेंगे उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कोई नहीं होगी। तो हमें सबसे पहला ये काम इंश्योर करना है सीपेक की सेकंड फेज में, या इसने करना है कि पाकिस्तान के जो इंडिजिनस जो हमारे पास वर्क फोर्स है उनकी स्किल डेवलपमेंट किया जाए, या ऐसे के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किया जाए ताकि जो हमारे पास लेबर फोर्स है वो क्रेडिबल हो, इस पोजीशन में हो कि वो जो प्रोडक्ट बनाए उसकी डिमांड मार्केट सेंट्रिक हो या उसकी ज़्यादा डिमांड हो मार्केट में। सी पॉइंट, वन विंडो ऑपरेशन टू इराडिकेट ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को पता है कि एक मतलब ओवर स्ट्रेच आर एक मतलब एक पूरा लंबा चौड़ा हमारे पास एक सेटअप यहाँ पे है। पॉलिसी मेयर्स को अगर कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने के लिए आए तो उसने एक पूरे चेन से एक टीडीएस प्रोसेस से गुजरना है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस से गुजरना होता है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करने के लिए। ठीक, तो अब सीपेक के इस सेकंड फेज में हमने ये हमारी कोशिश है इस सेकंड फेज की कि ये जो पूरा एक पेपर वर्क है जो कि टाइम टेकिंग है उसको वन विंडो ऑपरेशन किया जाए, यानी कि बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जो 5 मिनट्स का काम है वो विद इन 5 मिनट्स ही करना है, उसे 5 डेज तक स्ट्रेच नहीं हमने करना। तो ये एक पर्पस या ये एक काम यहाँ पे होना है। पॉइंट डी की तरफ चले जाते हैं, अट्रैक्टिंग एफडीआई टू 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जब ऊपर जो हमने पॉइंट्स हमने पढ़े वो सारे मटीरियलाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हमारे पास इकोनॉमिक जोन्स हैं स्पेशल, उनमें इन्वेस्टर्स आएंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, एक और भी चीज़ है, ये जो हमने इसके बाद नेक्स्ट एक हेडिंग यहाँ पे ये मेंशन की है 5 ईयर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में रिसेंटली एक एग्रीमेंट है जिसमें क्या बताया गया है, पाकिस्तान टू फैसिलिटेट चाइनीज इंटरप्राइजेस इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट इन एसईजीज। यानी पाकिस्तान ने एग्री किया है कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स यहाँ पे एसईजीज में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे उनके लिए पाकिस्तान एक फ्रेंडली बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट या एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें एसईजीज में। ये पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट के तहत एग्री किया है विद चाइनीज गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट जो है ना उसमें यह है कि अंडर दिस एग्रीमेंट बोथ नेशंस एग्री टू इंप्रूव द इंडेक्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे ऊपर हम बात कर रहे थे, जब तक हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेंडली बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होगा तब तक हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो हमें यह चाहिए कि सबसे पहले इंडिजिनस जो मार्केट है उसमें बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जहां पे जनरेट करें। अब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जो कि रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रोविजन ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स एंड सिक्योरिटी वगैरह। ये सारे हमारे पास एक बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो हम पढ़ते हैं उनको, उसका मतलब यह है कि हम ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करें। तो पाकिस्तान ने जो ऊपर जिस एग्रीमेंट या जिस फ्रेमवर्क की बात हमने की या जिसको हमने कहा कि 5 ईयर इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इस फ्रेमवर्क के अंडर पाकिस्तान ने चाइनीज गवर्नमेंट से ये प्रॉमिस किया है कि पाकिस्तान विल प्रोवाइड एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट टू चाइनीज इन्वेस्टर्स
ठीक, ये हमने यहाँ तक देखा। अब अगर आगे देख लें तो जो एक SEZ हमारे पास है जिसको हम कहते हैं डाबी जी, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इट इज सेट टू क्रिएट 75,000 जॉब्स एंड अट्रैक्ट 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 2025। यानी एक यही मतलब हमारे पास जो टोटल जो SEZ से 9 उनमें से एक डाबी जी है जिसके पास या जिसका पोटेंशियल क्या है 75,000 जॉब इसने क्रिएट करना है और कितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन इसने करानी है 3 बिलियन बाय 2025। तो ये हमारे पास जो इस सेकंड फेज का जो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और कैसे जॉब क्रिएशन होगी वो हमने देखा। अब अगर आगे देख लें बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे आप लोग कंसिडर करें, इकोनॉमी नहीं बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे वाया इंटर रीजन कनेक्टिविटी। पहले ही बात हमने की जब तक यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर रीजन कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक हमारा जो रेजन डेटर है CPEC का वो कभी भी फुलफिल नहीं होना। तो इस वजह से यहाँ पे जो पहला पॉइंट मेंशन्ड है उसमें लिखा है अपग्रेडिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दो टर्म्स है जो कि हमने समझने हैं। पहली टर्म पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब यह है कि वहाँ पे जो पॉलिटी है या वहाँ की जो पॉलिटिक्स की नेचर है वो एक ऐसी ना हो, कंपेटिटिव इन नेचर ना हो, ठीक है। वो उसको हम कहेंगे कि पर्सनालिटी कल्ट की बेस पे वो पॉलिटिक्स ना हो, बल्कि वहाँ पे कंसेंसस हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटी हो, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक। गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर हो, ठीक है। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनको हम कहते हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिस्ट्रेंट, उनकी कैपेसिटी हो या वो इतने मतलब क्रेडिबल हों कि वो अपनी जो रिक्वायर्ड उनकी जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड कर सके आवाम को, ठीक। अगर ये एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम कहते हैं ये पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस नेशन का। दूसरी जो टर्म है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब हम ये लेते हैं कि उस कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन कंट्री है कोई है, उसमें रोड्स कैसे हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये है कि वहीं कनेक्टिविटी है, ठीक, मतलब रोड्स की कैसी हालत है वहाँ पे, मतलब उसके बाद एनर्जी का क्या क्या सिचुएशन है, वाटर अवेलेबिलिटी है, लेबर फोर्स कैसी है एंड सो ऑन। तो इनको हम कहते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस फेस में जो सेकंड हम पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसको हमने पढ़ा बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी वाया इंटर रीजन कनेक्टिविटी, उसका पहला पॉइंट है अपग्रेडिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ा। सेकंड जो पॉइंट है वो है अपग्रेडेशन ऑफ डीप सी पोर्ट्स। आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि गवादर का जो पोर्ट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स हैं वो इंक्रीज होकर 120 होने लगे हैं, ठीक। यानी इसको हम एक इंटरनेशनल लेवल के एक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड स्पेस को लेके आ रहे हैं इस सी पोर्ट को। नेक्स्ट रीलोकेटिंग चाइनीज इंडस्ट्रीज टू पाकिस्तान। अब सेकंड फेज में चाइनीज की जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने उस पोजीशन को रीलोकेट करेंगे टू पाकिस्तान, या ऐसा कह लें कि वो अपनी मतलब डॉटर ब्रांचेस ओपन करेंगी पाकिस्तान में इस सेकंड फेज में। नेक्स्ट ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू इक्विप इंडस्ट्री विथ मच नीडेड मॉडर्न प्रोडक्शन मीन्स। अब जो हमारे पास ऑलरेडी इंडस्ट्री है जो कि नॉन डिसफंक्शनल है चूंकि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, अब चाइना जो है ना वो अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा पाकिस्तान इंडस्ट्री में ताकि इंडस्ट्री की जो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो मीट हो सके, इसमें होना है। आगे जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है द एग्जाम्पल के तौर पे, या एक हमारे पास केस है द मेन लाइन 1 या जिसको हम ML1 कहते हैं प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है रेलवे प्रोजेक्ट टू रिवोल्यूशनाइज रेलवे सेक्टर सेट टू ब्रिंग 7.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट। मतलब इस सब से हमें यह पता चला कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हो रहा है, उसकी वजह से या उसका जो प्रोडक्ट है या उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक, अट्रैक्शन ऑफ FDI और इन्वेस्टमेंट। ये दो प्रोसेसेस साथ साथ चल रहे हैं एंड दोनों जो है ना वो इन कंप्लीमेंटरी टू ईच अदर हैं। नेक्स्ट पॉइंट सी की तरफ चले जाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ लेबर फोर्स एंड ऑन साइट कैपेसिटी बिल्डिंग। अब चाइनीज जो है ना वो क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स जहां पे उनके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट की जो साइट है ऑन साइट जो है ना वो जो लेबर फोर्स है पाकिस्तानी लेबर फोर्स उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं ताकि उनकी जो एक्सपर्टीज है उनको अपग्रेड किया जा सके, ठीक, ताकि उनका जो आउटपुट है वो रिक्वायर्ड आउटपुट हो या कोविडेड आउटपुट हो, ठीक है। इसमें पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं वो है चैनलाइजिंग और चैनलिंग यूथ एंड मोबिलाइजिंग देयर पोटेंशियल। अब जैसे कि पाकिस्तान द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बुक है स्टेफन पी कोहन, जिसमें करंटली जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मुईद यूसुफ कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अपना जो यूथफुल जो डायनामिज्म है उसको मोबिलाइज करे तो पाकिस्तान के काफ़ी सारे जो इशूज़ हैं लाइक इकोनॉमिक इशूज़ हैं वो पाकिस्तान टैकल कर सकता है। तो CPEC का जो सेकंड फेज है उसका एक पर्पस ये भी है कि यहाँ के जो यूथ है न सिर्फ उनको ट्रेन करे, उनको
स्किल उनको स्किल्स प्रोवाइड करे, बल्कि उनका जो ट्रू पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट करे। ठीक, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम लिखा है स्किल डेवलपमेंट टू इनेबल यूथ अर्निंग लाइवलीहुड। जब यूथ हमारी स्किलफुल होगी तो ही उनके पास वो एक्सपर्टीज होंगी कि वो अपने लिए खुद ही लाइवलीहुड सोर्स को जो है ना वो जनरेट कर सकेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट लेबर एक्सचेंज प्रोग्राम रेंडरिंग इम्पेटस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। फिर हम चाइना के साथ हमारा ये भी एग्रीमेंट है कि हम चाइना से जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो मतलब ट्रांसफर चाइना करेगा टुवर्ड्स या टू पाकिस्तान। ठीक है, या इसको हम कहते हैं लेबर स्वेप प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं, जो कि पाकिस्तान एंड चाइना ने एग्री किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है ट्रेन एंड स्किलफुल ह्यूमन एजेंसी। अब इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारे पास जो ह्यूमन एजेंसी है या जिसको हम वर्क फोर्स कहते हैं या लेबर फोर्स कहते हैं वो स्किलफुल होगी तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होगी, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक, इससे क्या होगा, जो उस यानी इस प्रोसेस से जो हमारे पास प्रोडक्ट जनरेट होगा वो वेल स्टैंडर्ड या गुड अच्छी क्वालिटी का होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट्स बेस यानी ब्रॉडनिंग एक्सपोर्ट्स बेस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, ग्रेटर डिमांड। यानी हमारे पास सिंपल बात यह है कि जब हमारी लेबर फोर्स स्किल्ड होगी तो उनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनकी मार्केट डिमांड ज़्यादा हो, वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। अब जाहिर बात है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है। मार्केट डिमांड ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उस कंट्री का वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट मार्केट में उसकी ग्रेटर जो है ना वो डिमांड है। ग्रेटर डिमांड का मतलब यह है कि उस कंट्री ने एक्सपोर्ट ज़्यादा की है। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने का मतलब यह है कि उस कंट्री को मतलब एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक, एंड सो ऑन। तो इससे उस कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है होना शुरू हो जाता है। ठीक, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो ये हमारे पास था थर्ड पॉइंट। अब अगर फोर्थ पॉइंट की तरफ चले जाए तो यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटाइजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे फर्स्ट फेज में हम कर रहे थे या सीपेक कर रहा था, एनर्जी को प्रायोरिटाइज करना है, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करना, ये काम अभी तक चल रहा है। ठीक, तो इस यानी कि जो हमारे पास फोर्थ हेडिंग है इसमें भी यही हम बात करेंगे कि एनर्जी है, रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एनर्जी को भी हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है इस फेज में। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है एनर्जी कॉरिडोर्स टू मिटिगेट एनर्जी शॉर्टेजेस। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में स्टिल एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, मतलब इश्यूज हैं एनर्जी से रिलेटेड जिनको एड्रेस सेकंड फेज में करना है। नेक्स्ट उनकी एग्जांपल जैसे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जिसको पीस पाइपलाइन कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई रीइन्विगरेटिंग इंडस्ट्री, germinating jobs by necessitating new recruitments, higher tax collections and fiscal regularity। ये सारे एक मतलब चेन में चल रहे हैं। अगर हमारे पास एनर्जी जो है ना वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी हमें जो चाहिए वो अवेलेबल होगी तो हमारी इंडस्ट्री फंक्शनल होगी। इंडस्ट्री फंक्शन होने का मतलब है कि वहाँ पे जॉब्स या वहाँ पे न्यू लेबर फोर्स की जनरेट मतलब ज़रूरत पड़ेगी। जब नए लेबर फोर्स रिक्रूट होंगे तो क्या होगा, मतलब आवाम जो है ना वो जो हमारे पास लेबर फोर्स है उनकी जो अर्निंग है या ऐसे कह लें कि उनकी लाइवलीहुड जो है ना वो उनकी जॉब क्रिएशन की वजह से वो टैक्सेस पे करना शुरू करेंगे। ठीक, यानी टैक्सेस मीन हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्म है, हमारे पास रेवेन्यू है, डायरेक्ट रेवेन्यू वो जनरेट होगा। अब जब हमारे पास टैक्सेस जो है ना वो जो एक टारगेटेड जो टैक्स हमारे पास एक डिमांड है या एक जो हम टारगेट हर साल FPR टारगेट सेट करता है, अगर वो मीट हुआ तो पाकिस्तान में जो फिजिकल इरेगुलरिटीज हैं या जिसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट है वो खत्म हो जाएगा। जब फिजिकल डेफिसिट खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान को अपना सिस्टम रन करने के लिए बाहर से किसी और कंट्री या इंस्टीट्यूशन से लोन मांगने की जरूरत पाकिस्तान को नहीं होगी।